Good morning, student. Myself Subhash. Today we'll be study about the science, and in this video we are going to discuss on the types of the leaves. So different types of the plant present, and their leaves are the different on their structure. On the basic of their structure, the leaves are divided two parts. First is the simple leaf and second is the compound. So we study or discuss this about simple leaf. Suppose that first we are write simple leaf and second is the compound leaf. What is simple leaf? We said to be a simple leaf which has the a lamina and entire existence. That means a simple leaf with the help of diagram or figure we understand that simple leaf are attached to the a branch or a stem which middle leaves are present, and the middle leaf and veins are here attached to each other, but it have no any insist or incision, and it is known as the simple. But a simple leaf say a leaf which are insist are cuts, but not attached to the mid leaves or lamina or veins. So this leaf is called a simple leaf. But we can say that simple leaf which has the entire and insist that cut but not reaches the cut point to the mid leaf is called the simple leaf. Like the mango are the simple leaf, and banyan tree simple leaf, and papaya is the simple leaf. जैसे देखिए जो सिंपल लीफ होता है इसमें जो होता है सिंगल लैमिना होता है, यानी सिंगल लीफ होती है जो स्टेम से या ब्रांचेस से अटैच होती है। लेकिन यह जो लीफ होता है इसमें जो मिडरिप होते हैं और वेन्स होते हैं ये भी पाए जाते हैं, लेकिन यह कहीं पर कटे नहीं होते हैं, और ये कटे भी होते हैं तो यह इस मिडरिप से अटैच नहीं होते। मिडरिप यह है आपको, इसी को बोलते हैं क्या, मिडरिप बोलते हैं। तो मिडरिप से ये अटैच नहीं होते हैं परंतु बीच में ही कटे होते हैं। तो इस प्रकार के लीव्स को हम कहेंगे सिंपल लीफ। इसके एग्जांपल क्या है? तो इसके एग्जांपल हमने बताया है कि मैंगो ट्री हो गया, पपाया हो गया, बनियान ट्री हो जाएगा, बनियान tree is the example of mango tree, and radish समझते हैं, radish जो होता है etc are the example of simple leaves. And second types of the leaves, these leaves are attached to a common stems, and they are many both side of the plant.
both sides of plants. And if the cutting in these leaves, like they are cut, the cutting position are reaches to the mid leaves, and it is showing this types, and like that a simple leaves, many simple leaves present in a leaves is called a compound leaf. That means यह जो leaves होता है, अगर इसको हम कटिंग कर दें और इस प्रकार कटिंग हो कि यह कहाँ तक आ जाए, मिड लीफ तक आ जाए इस लीव्स के, तो हम इसे कहेंगे क्या, कंपाउंड लीफ। यानी कंपाउंड लीफ जो होता है उसमें कई लीफ छिपे होते हैं, जबकि जो सिंपल लीफ होता है वह केवल एक ही होता है, और उसका जो कटिंग पॉइंट होता है वह इस मिड लीफ तक अटैच नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, यह मिड लीफ तक अटैच हो जाता है, या इसके कॉमन एक्सिस के बोथ साइड, दोनों तरफ क्या होते हैं, लीव्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के लीव्स को हम कहेंगे कंपाउंड लीफ, और इस प्रकार के लीफ को हम कहेंगे क्या, सिंपल लीफ। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में नीम ट्री देखें हम लोग, नीम का पौधा जो होता है या पेड़ होता है, तो जो नीम ट्री होता है वह किसका एग्जांपल हो गया, वह हो गया आपका कंपाउंड लीफ का। इसके बाद नीम ट्री के बाद फिर है पॉपी, पॉपी ट्री, ये भी किसका एग्जांपल है, कंपाउंड लीफ का। इसके बाद रोज, रोज ट्री या रोज प्लांट कह सकते हैं, तो रोज भी, रोज प्लांट is the etc example of compound leaves. So we now the difference between the simple and compound leaf in these videos. And we start the second, what is the venation, venation, venation. We study the venation. Venation है, venation is a process in which the veins are arranged in a leaves or lamina. किसी भी पत्ती में या लेमिना में जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स होता है, वेन का अरेंजमेंट होता है मिड लीफ से, उसी को हम कहते हैं क्या, वेनिएशन कहते हैं। जैसे कोई भी पत्ती ले लिया हमने, मान लिया ये पत्ती है, ये भी इसमें मिड लीफ आपकी, और इस मिड लीफ के चारों तरफ जो अरेंजमेंट हुआ है इसका, ये वेन्स का, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लीव्स और लेमिना इज नोन एज द वेनिएशन। इसी को हम कहते हैं क्या, वेनिएशन कहते हैं। वेनिएशन दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेनिएशन। फर्स्ट इज द रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनिएशन, and second is the parallel variation, parallel variation, reticulate and parallel variation। reticulate में क्या होता है, if the any leaves have the middle and the both side of the middle leaves are the out of the spread the veins into the leaves is called the reticulate variation। reticulate variation ये होता है जिसमें अगर कोई भी पत्ती है और इस पत्ती के
और इस पत्ती के चारों तरफ जो ये वेन्स होते हैं वो क्या हो, फैले होते हैं। तो इस प्रकार जो पत्ती होती है इसमें ए नेट लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट आल्सो, इसमें एक नेट की तरह, जाल की तरह संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार के लीव्स को हम कहते हैं, या वेरिएशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन। जैसे आप नीम का पत्ता देखे हो तो क्या होता है, उसमें पूरा जाली जैसी संरचना बनी होती है। तो नीम का पत्ता हुआ, या फिर और जो तुलसी को आप देखिए तो उसमें भी तुलसी की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी पूरे वेन्स ऐसे पूरे पत्ती में फैले हुए होते हैं। तो इस प्रकार के वेरिएशन को हम कहते हैं क्या, रेटिकुलेट वेरिएशन। दूसरा होता है पैरेलल वेरिएशन। द पैरेलल वेरिएशन आर द वेरिएशन इन व्हिच ए लीव्स आर द वेन्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। वो एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। मान लिया कोई हमने एक पत्ता ले लिया, ठीक, इसमें जितने भी वेन्स हैं सब कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो इस प्रकार जो बना उसको हम कहेंगे क्या, यह जो हुआ उसको हम कहेंगे पैरेलल वेरिएशन। जैसे आपने बम्बू का पौधा देखा होगा, बांस की जो पत्तियां होती हैं उनको फाड़िए तो सीधे सीधे फट जाती हैं। आप बनाना की पत्तियों को देखिए तो भी सीधे सीधे फट जाती हैं। या बनाना हुआ, बम्बू हुआ, मैज हुआ, माइलेट हुआ, या फिर आप कह सकते हैं शुगर केन हुआ, वीट हुआ, पैडी हुआ, आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेरिएशन। बट द रेटिकुलेट वेरिएशन, नीम्स, रोज, तुलसी etc are the example of reticulate variation. That means देखिए रोज, नीम हो गया, रोज हो गया, और तुलसी etc are the example of reticulate variation. But that banana, मैच, माइलेट, बाजरा जिसको हम बोलते हैं, माइलेट हुआ, मैच हुआ, पैडी हुआ, वीट हुआ, etc are the example of parallel variation. So we can say that variation is the arrangement of veins in a leaf or lamina is known as the variation. Variation are two types. First is the reticulate variation and second is the parallel variation. Reticulate variation is the variation in which the midribs or both sides are the spread the veins into a net type structure. This is known as the reticulate variation, or this structure is a net or jal. So this is called the reticulate variation. Example: rose, neem, tulsi, etc. And the parallel variation, in which variation the veins are parallel to each other and they are starting from the petiole to the ends. That is known as the parallel variation. Example: banana, maize, millet, paddy, wheat, sugarcane, etc. are known as the parallel variation. So the variation. Now we discuss the function of leaf. What is the function of leaf? There are three functions of leaf. Function leaves के मेनली कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी पत्तियों के कार्य। function of leaf, पत्ती के वर्क। तो क्या फंक्शन होते हैं? पहला जो पत्तियों का वर्क होता है वह प्रिपरेशन ऑफ फूड। क्या करता है भाई? प्रिपेयर ऑफ फूड। फूड को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। सेकंड क्या होता है? ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन का वर्क होता है। तीसरा क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो तीन वर्क होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड क्या होता है? द लीव्स आर प्रिपेयर द फूड मटेरियल in the photosynthesis process. In this process, sunlight, chlorophyll are help, and the carbon dioxide and water are prepared the food in the form of starch and oxygen gas released. In this process, the starch are stored leaves transpiration. When they absorb water by the root, excess amount of, then they scrape the water by the stomata of the plant, and in the form of water vapors. So this is called the transpiration. Transpiration क्या है? Transpiration is a process in which the excess amount of the water scraped by the or move out of the leaves by the stomata is called the transpiration. Translocation. When the food material are prepared, they are carried to the different part of the plants is known as the translocation. पौधे जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तो उन भोजन को पौधे के विभिन्न पार्टों में कैरी करना, ढोकर ले जाना, एक कहलाता है क्या? Translocation. This is the function of the leaves. So the transpiration are the essential in the respiration of the plant, and food material are prepared by the photosynthesis process, and translocation is the carry of the food material to the different part of the plants. And we study the phyllotaxy. Phyllotaxy. What is phyllotaxy? Phyllotaxy is the arrangement of the leaves in different plant. पौधों में अलग अलग पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? फाइलोटैक्सी. यानी पत्तियां का जो पौधों में डिफरेंट प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है वही कहलाता है फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी तीन प्रकार का होता है. पहला जो होता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट. दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अपोजिट. और थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं होल्स. ये तीन प्रकार के होते हैं क्या? ये तीन प्रकार के होते हैं फाइलोटैक्सी. जो अल्टरनेट होता है इसमें जो मन या कोई एक पौधा है इसमें जो पत्तियां होंगी यह एक दूसरे से अल्टरनेट होती हैं. जैसे एक यहाँ है तो दूसरा वाला क्या होगा? यहाँ पर होगा. फिर यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा. ऐसे ये अल्टरनेट होती है. तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को या पौधों को हम बोलते हैं अल्टरनेट. यह किसमें पाया जाता है? तो इसका जो एग्जांपल है हिबिस्कस, जिसको हम बोलते हैं गुड़हल. हिबिस्कस का पौधा आप देखेंगे गुड़हल का सफेद फलों पर होता है हिबिस्कस. हिबिस्कस प्लांट इसका एग्जांपल है. अपोजिट साइड, the plant which has the both side of the leaves are present is called the opposite side, and they are present to each are opposite like this. जैसे if the one leaf are attached this position, then the second leaf are attached to this position. It is called the
it is called the opposite side of the plant, like the guava. आप गुआवा अमरूद को देखे होंगे, अमरूद की पत्तियों को। गुआवा या पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, ये जो अनार होता है, अनार की जो पत्तियां होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। होल्स में ये होता है, अगर कोई पौधा है और उस पौधे के क्या हो, उसी एक ही प्लेस से दो से अधिक लीव्स अटैच होती हैं तो उसको कहा जाता है क्या, होल्स। जैसे यहाँ से अगर पत्तियां लगी हुई हैं और फिर यहाँ से लगी हुई हैं, फिर यहाँ से लगी हुई हैं, यानी अगर 2 से अधिक हैं तो इस प्रकार के इस प्रकार अगर बना हुआ है तो इसे हम कहते हैं क्या, या ऐसे बना हो, एक ही जगह से लगा हुआ हो, तो इस प्रकार का अगर कोई पौधा होता है और उसमें चारों तरफ से पत्तियां हो तो उसको हम कहते हैं क्या, होल्स। इसका जो एग्जाम्पल होता है वह होता है कुकुम्बर रूट। कुकुम्बर रूट लकड़ी को देखें आप लोग, कुकुम्बर रूट, cucumber is the example of holes, phyllotaxy, opposite and alternate। इस प्रकार हम जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट और तीसरा होता है होल्स। फूड के फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन द टॉपिक इज द काइंड्स ऑफ लीव्स, वेरिएशन, function of leaves and the phyllotaxy. Now in the next video we study about the modification of leaves and which work. Thanks for its